الرحمن عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہم آج غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کوشش کریں کہ روزانہ جو پڑھایا جائے اس کو ڈیلی ریڈ کریں، اس کو چیک کریں۔ جہاں کہیں کوئی الفاظ مشکل لگے، سمجھ نہ آئے، آپ پلیز مجھ سے جب چاہیں کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیسن ہے، آج کی ہماری جو دوسری غزل ہے، یہ کل 6 اشعار پر مشتمل ہے۔ غزل نمبر 2 کا مصحفی کا، عزیز طالبات، میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی کہ جب بھی آپ کسی شاعر کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو کوشش کریں کہ اس شاعر کے جو ماحول ہے، جس ماحول میں وہ رہتا تھا، جو اس کے حالات ہیں، جو اس کے حالات زندگی ہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ کسی شاعر کے لکھے ہوئے شعر کو سمجھنے کے لیے اس کے حالات سے واقفیت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ مصحفی کا جو دور حیات ہے، آپ سب میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ 1758 اور اس کے پاس اس وقت جو دہلی اجڑا، پھر وہ لکھنؤ آئے جو اس وقت عیش و عشرت کا منبع تھا۔ لکھنؤ کے حالات، وہاں کے جو معاملات تھے، وہ سب کے سب جو ہے، ان سب کے اثرات مصحفی کی شاعری میں نمایاں ملتے ہیں ہمیں۔ مصحفی نے ان کی اس دوسری غزل کا جو پہلا شعر ہے، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ عدم فنا ہستی کا متضاد ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو کہتے ہیں۔ دل شاداں خوش و خرم دل کو کہتے ہیں۔ یہاں سے مراد یہاں سے، اس دنیا سے، حسرت ناکام ایسی خواہش کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہوئی ہو، ارماں خواہش آرزو کو کہتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم ہے کچھ یوں ہے، اس دنیا سے عدم کو، آخرت کو کوئی بھی خوش و خرم دل کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ اس دنیا سے طرح طرح کی حسرتیں اور ناتمام آرزویں ساتھ لے کر جو وہ گیا ہے۔ اس شعر کی تشریح جو ہے کچھ یوں ہے کہ انسانی دل جو ہے آرزوؤں اور خواہشات کی اماجگاہ ہوتا ہے۔ ہر انسان ہوش سنبھالتے ہی دنیاوی خواہشوں میں الجھ جاتا ہے۔ اچھی خوراک کی خواہش، اچھے لباس کی خواہش، اچھے گھر کی خواہش، مال و دولت کی ہوس، اقتدار و اختیار کی خواہش، تمنا، کسی حسین محبوب کی آرزو، غرض ہر نوع کی تمنائیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ تمام عمر انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمناؤں کا یہ سراب اسے کہیں چین نہیں لینے دیتا۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان کی ہر تمنا خواہش پوری ہو جائے۔ بہت سی آرزوئیں تشنائیں تکمیل رہ جاتی ہیں، چنانچہ نامرادی انسان کے دل میں ایک کسک چھوڑ جاتی ہے۔ ہر تمنا کی ناکامی دل پر ایک ضرب لگاتی ہے، ایک چرکا لگاتی ہے۔ اس طرح پے در پے ناکامیاں اور نامرادیاں انسان کی زندگی میں دکھوں کا زہر کھول دیتی ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں انسانی فطرت کے اسی ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کائنات سے جو بھی عدم کی طرف، آخرت کی اس طرف جاتا ہے۔ عزیز طالبات، آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی فنا پذیر ہے،
इंसान को कभी ना कभी फना होना है, इस ज़िंदगी को ख़त्म होना है, और आखिरत की तरफ, अदम की तरफ कभी भी कोई भी इंसान मुतमईन दिल के साथ नहीं जाता। नाकामियों और हसरतों के सैकड़ों दाग इस दिल पर लिए हुए इस दुनिया से इंसान रुखसत होता है। गालिब ने इस शेर के बाद की तशरीह अपने इस शेर में कैसे खूबसूरत अल्फाज में की है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इस शेर में एक और लतीफ़ नुक्ता ये भी है कि इंसान कसरते गमों अंधों के बाइस ज़िंदगी से बेजार होने के बावजूद अदम का रुख करने से घबराता है, मौत के तसव्वुर से भी कांप उठता है। इसका मरने को जी नहीं चाहता, शायद इसलिए कि वो अपने इन अरमानों को पूरा करना चाहता है जो अभी तक उसके दिल में बाकी हैं। हसन मसफ़ी के गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 2 कुछ यूं है। बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिसमें, बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिसमें, लालाओ गुल गए साबत न गरेबां लेकर, लालाओ गुल गए साबत न गरेबां लेकर। लुगत कुछ यूं है। दश्ते जनू दीवानगी का जंगल, दश्त जंगल को कहते हैं। जनू ऐसी कैफियत जिसमें इंसान होशो खरद से बेगाना हो जाए। लाला गुल और गुले लाला और गुलाब का फूल, मुख्तलिफ किस्म के ये 2 फूल हैं। साबत सही सालम दुरुस्त हालत में, गरेबा कमीज़ का गले और सीने का हिस्से को कहते हैं। और इस शेर का मफ़हूम कुछ यूं है। बाग भी असल में ऐसा जंगल है जहाँ लाले और गुलाब के फूल खिल के वो भी अपना गिरेबां सही सालम इस दुनिया से ना ले जा सके, बल्कि वो जिस तरह कली से फूल बन के चटके और फिर उनको ज़वाल हुआ, तो वो अपने इस गिरेबां सालम जो है असल ना रख सके। बाग भी असल में जुनू का जंगल था जहाँ से लाले और गुलाब के फूल भी अपना गिरेबां सही सालम न ले जा सके। इस शेर की तशरीह कुछ यूं है कि आशिक पर दीवानगी का आलम तारी होना और उसका गिरेबां चाक करना हमारी जो रवायती शायरी का महबूब मौजू रहा है। हर शायर ने इस मौजू को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है। मजनू की पैरवी में आशिक पर वहशत तारी हो जाती है, अपना गिरेबां फाड़ देता है और इश्क में पागलपन का रास्ता इख्तियार करते हुए जंगलों और सहराओं का रुख कर लेता है। ख़ुसूसन बहार के मौसम में आशिक की वहशत में बहुत शिद्दत आ जाती है। मीर इसी पागलपन को कुछ यूं बयान करते हैं। कुछ करो फिक्र इस दवाने की, धूम है फिर बहार आने की। मोमन इस कैफियत को बयान करने में मीर से 2 हाथ आगे हैं। बड़ी खूबसूरत अल्फाज में बात करते हैं। क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, और सुए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। मसफ़ी कहते हैं कि ये वहशत सिर्फ इंसानों पर मौकूफ नहीं बल्कि फूलों पर भी दीवानगी का आलम तारी होता है। इंसान तो जंगलों में निकल जाता है, अलबत्ता फूलों के लिए उनका अपना चमन ही दश्ते जुनू की हैसियत रखता है। बहार आने पर जहाँ आशिकों की दीवानगी में शिद्दत आ जाती है और वो अपना गिरेबान चाक करते हैं, इसी तरह गुले लाला और दूसरे फूलों पर भी वहशत तारी होती है और वो अपना गिरेबान तार तार कर देते हैं। ये शायर का अपना अंदाज़े नज़र है। फूल खिलते हैं तो इनकी पत्तियाँ खिल जाती हैं। गुलाब की पंखड़ियाँ जो खिलने से पहले सिमटी होती हैं अपना मुंह खोल देती हैं। शायर फूलों की इस कैफियत को चाक दामानी से ताबीर करते हुए कहता है कि फूलों के लिए
बाग भी दश्ते जनू की हैसियत रखता है, जहाँ से कोई भी फूल ऐसा नहीं होता जो अपना गिरेबां सलामत लेकर गया हो। हर कली को खिलना है, लिहाजा हर फूल को अपना दामन चाक करना है। मुख्तसर ये कि इंसान तो इंसान बाहर की आमद से, फूल भी दीवानगी से अपना दामन तार तार कर डालते। शेर नंबर 3 कुछ यूं है। पर्दाए खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दाए रुखसार पे क्या क्या माहे ताबा लेकर। पर्दाए खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दाए रुखसार पे क्या क्या माहे ताबा लेकर। पर्दाए खाक में मट्टी के नीचे, मट्टी के पर्दे में, मट्टी के नीचे, रुखसार गाल चेहरा, माह चांद को कहते हैं, माह ताबा रोशन चांद, चमकता हुआ चांद। इससे मुराद यहाँ पर हसीन लोग हैं। शेर का मफहूम कुछ यूं है। अफसोस, कैसे कैसे खूबसूरत और हसीन लोग मुंह पर पर्दा डालकर मट्टी के नीचे सो रहे हैं। तशरीह इस शेर की कुछ यूं है। हुस्न ऐसा जादू है जो सर चढ़ कर बोलता है, इससे मुतासर होना इंसानी फितरत का खासा है। यूं तो हर शख्स हुस्न को देखकर सहर ज़दा हो जाता है, ताहम शायरों और फनकारों में हुस्न को देखने, परखने और इससे हिज़ उठाने की इस आम लोगों में की निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है। वो हुस्न के सच्चे पुजारी होते हैं और इसकी सही कदर कीमत से आशना होते हैं। हुस्न वालों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न वालों से ये कह दो कि न निकलें बाहर। हुस्न वालों से ये कह दो कि न निकलें बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। अजीज तालबात, ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि कायनात की तमाम रंगीनियाँ और सारी कशिश हुस्न की मरहून मिन्नत है। लेकिन ये भी तलख हकीकत है कि हुस्न को दवाम नहीं, उसे फना होना है, उसे ख़त्म हो जाना है। हुस्न के ख़त्म हो जाने का यही एहसास शायर के इस शेर का बुनियादी ख्याल है। शायर को इस बात का कलक है कि वो हसीन चेहरे जो हाथ लगाने से मैले पड़ जाते हैं और जिनकी लताफत किसी तरह दुनिया की कसाफत की मुतहम्मल नहीं हो सकती। एक ज़माना जिस हुस्न का शैदाई होता है, मरने के बाद मनो मट्टी तले वो खूबसूरत चेहरे चले जाते हैं। शायर ऐसे हसीन चेहरों को चांद से तशबीह देता है। वो कहता है कि अफसोस, ऐसे लाताद, ऐसे हसीन लोग जिनको देख के चांद भी शर्माता है, आज मट्टी की चादर ओढ़े ज़ेरे ज़मीन आसूदाए खाक है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मौत आ जाएगी महा पारों को, हाय ये लोग भी मर जाएंगे। और गालिब ने इस शेर को कितनी खूबसूरती से बयान किया है। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायाँ हो गईं, सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पनाह होंगी। गालिब ने क्या खूबसूरत बात की है कि कहाँ ये जो ज़मीन पर लाला और गुलाब के फूल उगते हैं, जो ज़मीन को जो कायनात को खूबसूरती बख्श रहे हैं, दर हकीकत ये कोई खूबसूरत चेहरे वाले लोग हैं जो मनो मट्टी तले, जो जब ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने पे फना होते हैं, अदम का, आखिरत का सफ़र इख्तियार करते हैं, तो ये लोग गुलाब और लाले और मुख्तलिफ फूलों की सूरत में इस ज़मीन पर फिर नुमायाँ होके कायनात के हुस्न में इजाफ़ा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।